students, how are you? How is going your study? Very well, fantastic, marvelous, fabulous. बहुत बढ़िया dear student. Today our topic is capacitance of a PPC. PPC means parallel plate capacitor when a dielectric slab inserted inside it, or you can say between the plates of parallel plate. Let's see what is the parameters are there. Let's consider this is the plate of cap. Okay, dear student, we have two parallel plate capacitor plates having charge, you can say plus Q and minus Q, magnitude is Q. On the separation between the plates is given small d, and this is the dielectric slab. This is the dielectric slab of the dielectric constant K. Okay, कितना है इसका dielectric constant K and thickness of it small t. Thickness of it small t. T should be I am considered less than D. Otherwise बाहर चला जाएगा, है ना? Okay. T is the thickness. आपको क्लियर है, कहने का जरूरत नहीं है कि should be less than D. Okay. Some books में रिटर्न होता है, तो अंडरस्टूड है ऑब्वियसली कि थिकनेस अगर इसके इक्वल और लेस देन होगा तभी आप इंसर्ट कर पाओगे, अदरवाइज बाहर चला जाएगा. हाँ जी. नाउ टेल मी, देयर इज ए फ्री स्पेस, वी कैन कंसीडर एयर. ओके, सो दिस इज द प्लेट प्लस पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव charge here, uniformly distributed. Now what's about this surface and this surface? Because of the polarization occur in the dielectric slab. In negative charge, you can say opposite charge will be induced outer surfaces. Plus. Got the point? Due to polarization, opposite kind of charge will be appear outside the surfaces. Okay. Now from outer space we can consider the electric field is E naught. आउटर जो स्पेयर है एयर स्पेस है, ठीक है, एयर स्पेस है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E नॉट. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट on this side also you can write E naught and E naught. If we talk about inside what will happen? Sir, there will be a net electric field and it will reduce some by factor K. हमें पता है कि किसी भी मीडियम में जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K है, you can say कापा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाता है by 1/K times, isn't it? If you talk about force Fm is equal to, you write F naught upon K. So similarly you can write Em, electric field in medium, it will be E naught by K. For the point, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास तो होगा लेकिन वो कितना होगा? लेस होगा, एंड दैट इज द EM, एंड उसका जो वैल्यू होगा. अच्छा, नाउ टेल मी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड EM है वो रिजल्टेंट है, EM वो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट कैसे सर यहाँ पे आप देखिएगा इसका सेल्फ का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो सेल्फ के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आ जाएगा EP ड्यू टू पोलराइजेशन एंड यो कंप्लीट जो E नोट यहाँ से जा रहा है, कंप्लीट E नोट यहाँ से जा रहा है, दैट इज द E नोट में से आप EP माइनस करेंगे, देन यू विल गेट EM. सो आई एम राइटिंग हियर, यू कैन से E नोट माइनस EP, दिस विल बी रिजल्टेंट. तो आई विल राइट हियर, सो डोंट वरी, मैं वहां पे आपको समझा रहा हूँ इस चीज को, हम सब ये चीज यहाँ पे लिखेंगे. सो रेडी? यस, आ जाइए.
Yes, dear student. Initially, we consider air is filled between the plates. There is no slab in initial condition. So and then the initial capacitance. What will that? We know that epsilon naught A upon D. Got the point? ये आप लोगों को पता है कि जब यहाँ पे एयर फील्ड हो completely, तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा यू नो सब पे चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ व्हाट्स अबाउट द आफ्टर inserting a dielectric slab, yes, polarization occurs inside the slab. So you can say net electric field inside the slab. What will that, sir? E is equal to, you can say in medium, em in medium, that will be external minus ep due to polarization. एंड जो ये वैल्यू आएगी सोल्व करने पे, इट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई के. इट विल इक्वल टू ई नॉट बाई के. इसको आप जब सोल्व करेंगे, व्हेन यू सोल्व दिस यू विल गेट ई नॉट बाई के. अभी अभी हमने बात की थी, लाइक दैट, सिंपल. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब. सो वी हियर हैव two field of electric field. One is E naught, another is EM. So what is the out target? Sir, calculate the capacitance. आप capacitance find करें. And what is the basic definition of capacitance? Sir, C is equal to Q upon delta V. हमें Q known है, चार्ज हमें known है, हमें डेल्टा V चाहिए between the plates. डेल्टा V क्या होता है? सर हमें पता है डेल्टा V is equal to, if there is uniform field, electric field, E into D. हम E into D करते हैं. But there are two electric field regions, E naught and EM. So we have to apply two potential differences. So ready? Yes, dear student, आ जाइए. Now total potential difference between the plates of capacitor. What will that? So delta V is equal to potential drop due to E naught plus potential drop due to EM. What the point? There are two regions. One is E naught, another is EM. So potential drop individual electric field की वजह से होगा. So you can say E naught into D. ये इसका सेपरेशन, हाँ, ये E naught कितना रीजन में लाई करता है? D में? नो, पूरे D में कहाँ लाई करता है? T है यहाँ पे, तो ये में T में, नो, T में तो है ही नहीं. सो कितने में है सर? T माइनस कर दीजिए D में से, उसमें रीजन में ये लाइक करता है. सो इसका हो गया D माइनस T. If we talk about potential drop due to EM, अगर हम EM के लिए बात करेंगे तो EM किस में लाई करता है? ओनली इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. सो इसका क्या आ जाएगा? EM इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी? T. सो गॉट द पॉइंट. इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें जरूर. ई नोट कहाँ लाई कर रहा है? ई नोट इस स्पेस रीजन में लाई करता है, एयर में. तो यहाँ का जो सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा? T माइनस कर दो D में से, तो ये सेपरेशन आ जाएगा D माइनस T. इफ वी टॉक अबाउट EM लाइज ओनली फॉर थिकनेस T. अच्छा, दिस इज द डेल्टा V. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ EM. E नॉट बाय के मैग्नीट्यूड ऑफ you can place. Okay, so from here delta V is equal to E naught D minus T plus, सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे में, E naught by K. For the point, very good. From here you can take outside delta V is equal to E naught. When you take outside, you will find D minus T plus T upon K. So here, from here, this is the delta V. ये हमारे पास में आ गया डेल्टा V. नाउ बहुत पास में हम कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए. सो रेडी रहिए. यस, मैजिक प्लीज वाइट दिस बोर्ड.
Yes, dear student. Now from the definition of capacitance, you can say from the definition of capacitance, what can you say? So C is equal to Q upon delta V. Am I right? And what is the value of delta V? You can put your C from here. C is equal to Q upon delta V. फटाफट से बता दीजिएगा. E naught and D minus T plus T upon K. Okay. Now what is the electric field? Initially we have written E naught is equal to sigma naught upon epsilon naught. You can say sigma charge Q upon A epsilon naught. Am I right? यही आपने लिखा था. Very good, very good. शाबाश. So from here C is equal to put कीजिएगा Q upon E naught का वैल्यू पुट कीजिएगा Q upon A epsilon naught D minus T plus T upon K. K is dielectric constant. Okay. From Q goes to home and epsilon naught will come in numerator epsilon naught A upon D minus T plus T upon K. This is the electrical capacitance after inserting a dielectric slave. Okay, तो यहां से हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें epsilon naught A upon D minus T take outside, you will find that minus plus minus 1 upon K. This is the important formula from here. You can say very important. After inserting the capacitance of a parallel flat capacitor becomes like that. Epsilon naught upon D initially था, ठीक है, without any dielectric slab or any slab. Epsilon naught upon D, जैसे आपने स्लेब इंसर्ट किया T थिकनेस का, it becomes D minus T bracket 1 minus 1 upon K. Got the point? Got the point? I hope you enjoy. Very simple way में आपको बताया है. Simple concept था. C is equal to Q upon delta V. Delta V फाइंड करना है. डेल्टा V क्या होता है? E into D. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट हमें नोन था इनिशियली, बट इनसाइड हमें डायलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन से रिड्यूस हो जाएगा और जो नेट मिलेगा EM दैट विल बी E नॉट बाई K. सो वहां से E नॉट बाई K हमें मिला और हमने इसको पुट करके डेल्टा V फाइंड किया, दोनों का पोटेंशियल. वो द पॉइंट, पोटेंशियल से जैसे हमने डिवाइड किया, वैल्यू पुट की इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K. गॉट द पॉइंट? प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बी एक्टिव. यस मैजिक बाय द वर्ड. Yes, dear student. Now we know that in air capacitor epsilon naught upon D, that is the electrical capacitance, and in dielectric slab के साथ हमने इसको डिराइव कर लिया है. जब आपने dielectric slab इंसर्ट किया epsilon naught A upon D minus T plus T by K, and you also can write like this D minus T, T जब आप बाहर ले लेंगे कॉमन 1 minus 1 upon K. K is the dielectric constant. रिमेम्बर रखिएगा इसको, K को epsilon R से भी आप बोल सकते हैं. This is the dielectric constant. Got the point? Yes. जो कंफ्यूज मत होइएगा, कापा भी बोलते हैं इसको, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है कहीं कहीं. हाँ. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप सम केसेस. सो केस फर्स्ट. इफ, व्हाट इफ देयर इज नो स्लैब. इसी से मैं देखता हूं. इफ देयर इज नो स्लैब, इफ देयर इज नो स्लैब, देयर इज नो स्लैब. अगर कोई स्लेब नहीं है, या यू कैन से एयर कैपेसिटर्स. एयर कैपेसिटर इसका मतलब क्या हो गया? ओनली एयर फील्ड है. तो T इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए. T इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो C क्या आ जाएगा यहां से देखिएगा. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 0 प्लस 0, दैट इज एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. और ये क्या आ गया? C नॉट. सही है सर? नो, यही था. सेकंड केस लेते हैं डियर स्टूडेंट. टेल मी केस सेकंड. सर, if there is a conducting slab, there is a conducting slab of T thickness, then what? Now what is that
क्या होगा उस केस में? उस केस में क्या होगा बताएं? कंडक्टिंग स्लैब ऑफ टी थिकनेस। उस केस में क्या होगा? हमें पता है इससे जो कंडक्टिंग स्लैब होती है जिसकी थिकनेस कितनी है? टी है। तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए जो कापा होता है, यू कैन से एप्सिलॉन आर होता है, दैट इज द इन्फिनिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू किसी कंडक्टिंग स्लैब के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी। रिमेंबर रखिएगा। सो फ्रॉम हियर फोर्स कंडक्टर स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब के लिए कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी। के की जगह आप इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। am I right? पता है डियर स्टूडेंट? सो हाउ मच कैपेसिटेंस इंक्रीजेस? यहां से क्वेश्चन आता है बाय विच फैक्टर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस आफ्टर इंसर्टिंग ए कंडक्टिंग स्लैब। जैसे आप कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते हैं तो कितना होता है? हाँ, इसका डायग्राम जरूर आप बनाइएगा। क्यों? वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कहां पे? इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब। जैसे ये कंडक्टिंग स्लैब हमने इंसर्ट की, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये प्लस है ये माइनस है, यू कैन से प्लस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज ओनली आउटर सरफेस टिल आउटर सरफेस। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। आउटर साइड होगा दैट इज द एयर, यू कैन से फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। गुड द पॉइंट। तो इस जरूर ध्यान रखिए, ये कंडक्टिंग स्लैब अगर आप इंसर्ट करते हैं तो कंडक्टर के इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंडक्टिंग स्लैब है, तो इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। तो वहां का कोई पोटेंशियल ऐड नहीं होगा। दैट्स व्हाई टी बाई के टर्म्स बिकम जीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपसे पूछा, by what factor capacitance increases of a PPC after inserting a conducting slab? So initially आपको पता है, initially because C नॉट initially आपको पता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D था। Now after जैसे आपने इंसर्ट किया, what will that? देखिएगा, चेक करते हैं। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। ये जरूर याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए डी एयर में जैसे कंडक्टिव स्लैब इंसर्ट करेंगे तो डी माइनस टी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब करेंगे तो टी प्लस बाई के। एक टर्म बढ़ता जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, फिर कंडक्टिव स्लैब में डी माइनस टी, माइनस हो गया टी, फिर यहाँ पे टी बाई के और एड हो जाएगा। क्यों? कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है हमेशा। इंक्रीज कब होता है? जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा? डी माइनस डी कॉमन ले लिया मैंने, डी कॉमन ले लीजिएगा, 1 अपॉन टी डी, ओके, टी डी माइनस टी, ओके, टी माइनस डी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या है? सो सी नॉट है। सो यहां से आप यू कैन राइट सी नॉट अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं? एलसीएम लेके डी माइनस टी अपॉन डी। सो C naught D upon D minus T. So this is the factor by which capacitance increases. So you can take ratio, conducting slab है ना, C conducting slab. So मैं यहाँ लिख रहा हूँ C conducting slab divided by C naught, conducting slab को यहाँ पे कंडक्टर क्या आ जाएगा सर? ये सी नॉट अपॉन सी नॉट यहां से कैंसिल हो जाएगा, डी माइनस डी, टी आपके पास में एज इट इज रह जाएगा। तो दिस इज द फैक्टर, ये कैंसिल हो जाएगा। सो देयर इज नो नीड टू राइट दिस, यू कैन राइट लाइक दिस डी माइनस टी। तो ये फैक्टर है डी अपॉन डी माइनस टी बाय विच कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ऑफ पीपीसी आफ्टर इंसर्टिंग ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ द थिकनेस टी। रेडी? वेरी गुड। अब हम आगे इसके और केस लेते हैं। रेडी रहिए, अभी तो बहुत केस पेंडिंग है। यस दिस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस इज द इफ a number of slaves are inserted, okay, having different thickness T1 T2 T3, you can say T1 T2 T3 and till Tn, or dielectric constant
K1, K2, K3, Kn, एप्सिलॉन R1, R2, R3 भी आप बोल सकते हैं. सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट? हमें पता था सर, अभी अभी एक स्लेब आप इंसर्ट करते थे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T आप यहाँ लिखा करते थे. ठीक है, T प्लस T अपॉन K आप यहाँ राइट किया करते थे. If there are number of slabs, so number of thickness. If there are number of dielectric constants, so T by K number of them. So you can write like that. I am going to rub this T1, T2, dot, Tn. Complete T. Okay, plus from here T1 by K1, T2 by K2. Similar, बिल्कुल similar. Dot Tn by Kn. Very easy. In the place of T we will write all thicknesses sum, and in the place of T by K we will write the sum of the all the T by K ratio for individual dielectric slabs. Know the point? सही है सर? नो? If इसके अंदर भी अगर केस लगाया है, if T1 plus T2 plus dot Tn is equal to D, completely filled, you can say completely. अगर आपने filled कर दिया dear student, then what will happen? अगर आपने इसको completely filled कर दिया तो ये सारा सम किसके इक्वल हो जाएगा? D सेपरेशन के इक्वल हो जाएगा. For that you will find C is equal to epsilon naught A upon D minus D will become 0, and this will become T1 by K1, T2 by K2, dot Tn by Kn. So when you simplify further, you will get epsilon naught A upon T1 by K1 plus T2 by K2. Very good. Simple है. Tn by Kn. Very good. Shabash. So this is the capacitance of with some dielectric slabs, conducting slabs. हम टॉक कर चुके हैं, बात कर चुके हैं उसकी. तो आइए और कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं. रेडी? यस. Yes, dear student, we have question. What is the capacitance of parallel plate capacitor if it is completely filled by a dielectric slab of dielectric constant K? If initial capacitance is C naught, what is the answer? Tell me fast. Solution, sir. We know that initially C naught is equal to epsilon naught A upon D, and a slab of T thickness. A slab of T thickness के लिए आप बात करते हैं. Slab of T thickness के लिए बात करते हैं. That is epsilon naught A upon D minus T plus T upon K. Am I right? Now you are saying that completely filled. What is the meaning of that? Completely filled means T is equal to D. Okay. So what will that? So C. You can say medium. I am talking about medium. तो ये हो गया epsilon naught A upon D minus D plus D upon K. D will cancel. K will go upside, epsilon naught upon D. So from here C medium becomes K times of C naught. Am I right? Say yes or no. So capacitance increases in medium by K times. So ready for next question? This is the basic and simple question. Yes. Yes, Magic? Yes, dear student, आ जाइए. If initial capacitance is 10 microfarad and the area is equally divided. Now, initially ये given है आपको. If the area is equally divided and filled with the dielectric slabs, K1 is equal to 4 and K2 is equal to 2, then find new capacitance. ये पहले C नोट इतना है. अब इसने एरिया को डिवाइड किया इक्वली और डायलेक्ट्रिक स्लैब इसमें फिल कर दी. तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. हाँ जी, सॉल्व कीजिए डियर स्टूडेंट. वेरी इजी क्वेश्चन. इनिशियल आप कैपेसिटर बना दें. दिस इज द इनिशियल कैपेसिटर लाइक दैट. ओके, ये इनिशियल कैपेसिटर हो गया. बराबर बनाइएगा इक्वल. हाँ, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था. यहाँ का सेपरेशन कितना था सर? डी था. एरिया है इस प्लेट का कंप्लीटली, जो एरिया है वो कितना है? टेल मी. एरिया कितना ले रहे हैं हम प्लेट का? ए. एरिया कितना ले रहे हैं? ए. आप अभी शायद ये हटा दे तो क्लियर हो जाएगा. ए. तो कैपेसिटेंस इनिशियली कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट? दिस इज और अच्छे से आप इसको. नाउ इट इज सेइंग दैट
इसको आप इक्वली डिवाइड करें, इसको एरिया को, एरिया डिवाइड इक्वली, ओके इक्वली डिवाइड किया हमने एरिया को, ओके सर इक्वली डिवाइड कर दिया, दैट नाउ देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो तो स्केल लेके मेजर मत कीजिएगा, है ना। हाँ जी सेपरेशन तो सेम रखा है, डी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। एरिया जो है a/2 हो चुका है, एरिया है जो a/2 हो चुका है, या यू कैन से एडेस इज इक्वल टू a/2, ओके। अब इन्होंने इसको फिल कर दिया है किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से K1 एंड इसको इन्होंने फिल किया है K2, कोई दूसरा मटेरियल है K2। Now what is the equivalent capacitance it is asking about? So very interesting, you can say आप सिंपल इसको सोल्व कर सकते हैं। सर कैसे सोल्व करें इसको, तो आप बाई कॉम्बिनेशन वाला रूल लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है। बाई कॉम्बिनेशन आप रूल लगाएं, जैसे आप सप्लाई देते हैं, आप इस पे सप्लाई कहाँ दे रहे थे, यहाँ सप्लाई दे रहे थे, ठीक है, इधर ये वाले प्लेट पे सप्लाई ऐसे दोगे, इन पे भी आप सप्लाई ऐसे दोगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ आप सप्लाई दोनों प्लेट पे दोगे, दोनों प्लेट पे दोगे तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस डायग्राम लाइक दिस। देखना ध्यान से देखना स्टूडेंट, आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या करते ही हैं ये, तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये हो जाएगा K1 एंड दिस इज द अनदर, ओके दिस इज द K2, और सप्लाई जो आप दे रहे हैं वो सेम वायर से दे रहे हैं, वही वायर है, इसको यहां से टच किया हुआ मान सकते हैं, कनेक्टेड तो उसी वायर से है, सिंगल वायर से कनेक्टेड है, बस मैं इनको सेपरेट कर दिया वायर से कनेक्ट कर दिया, गॉट द पॉइंट। तो आपको अब नजर आ रहे होंगे ये दो, इसका कैपेसिटेंस बोल दे C1, इसका कैपेसिटेंस यू कैन से C2, बोथ आर इन पैरेलल, इजी हो गया। अब आपको पता है इजी हो गया, तो आप क्या बोल सकते हैं सर, C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा, एम राइट, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। अच्छा C1 क्या आएगा, कैन यू टेल मी, बहुत इजी है, कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड होता है तो CM आप लिखते हैं K टाइम्स ऑफ C0, सही है सुनो। तो यहाँ पे लिखिएगा C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया, इसका कितना है A', एरिया कितना है A', जरूर ध्यान रखिएगा, A' अपॉन सेपरेशन तो सेम है D, ये आ जाएगा K2 C2 के लिए एप्सिलॉन नॉट A' अपॉन D। एरिया का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि एरिया डिवाइड किया तो एरिया, अब A' की वैल्यू रख दें, बाकी सब कॉमन आ रहा है आई थिंक, तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी C जो न्यू आ रही है यहाँ से C इक्विवेलेंट, यू कैन से C', यू कैन से ऑल्सो C' बोल सकते हैं इसको, के एप्सिलॉन नॉट A/2 एंड D, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट A/2 क्योंकि दोनों को ये कॉमन आ जाएगा सारा, और यहाँ रह जाएगा K1 प्लस K2। तो योर आंसर इज C' इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को आपने क्या लिखा है C0, इसको लिखा है आपने C0, इनिशियली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को क्या लिखा है C0 2, तो ऐसे कैसे रहेगा 2 K1 प्लस K2। हाँ जी, अब वैल्यू रख दें C0 की 10 माइक्रोफैरड, 10 डिवाइड बाई 2, K1 दे रखा आपको 4, K2 कितना है 2, कितना आ गया, मेरे ख्याल से आ गया 30 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, यस कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है ऑलवेज जब भी आप डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें। आई होप यू लाइक, वेरी गुड, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ओके कमेंट जरूर लिखें। Yes dear student, we have a question and this is for all of you, आप जवाब दीजिएगा। Find the C of the given system। सिस्टम ऐसे है कि ये प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, दिस इज द प्लेट्स, ठीक है, ये कनेक्टेड है, सप्लाई है ये, इनके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 एंड K2 इंसर्ट किया है, एरिया दोनों का कॉमन है, बट जो सेपरेशन है वो D/2 है, गॉट द पॉइंट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर जरूर लिखिएगा, ओके, और ABCDE ऑप्शन भी है तो ध्यान दीजिएगा जरूर, आंसर जरूर लिखिएगा, और बी एक्टिव, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।